Hello student. Hello student. Welcome to my channel. My name is Manisha Bajoria. Today we will study class 10 exercise 9.1 some application of trigonometry. In the previous video we have finished the introduction of some application of trigonometry and we have done some important question also. Now we will do the exercise 9.1. So question number first. A tree breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. क्या पढ़ लिया भैया? So पढ़ते पढ़ते by reading we will make the figure also. By the figure we can easily do the question. ठीक है? So first we will draw a tree. This is your tree. AB is your tree. So it is broken from, let us consider it is broken from C. So BC is your broken part. तो BC से C से broken हुआ तो ये BC जो bend हुआ ऐसे, this bend like this. Okay? तो BC is a broken part. Which is C. तो BC equals to CD के बराबर होगा. BC equals to CD. थोड़ा सा लंबा बन गया लेकिन this is both are equal. Making an angle of 30 degree with the distance between the foot of the tree, this is foot of the tree, to the point where the top of the tree touches the ground is 8 meter. This is 8 meter. Find the height of the tree. We have to find the A. Okay. Now solution. Let AB is the height of the tree. Okay. The tree broke from point C. So BC equals to CD. है ना? And angle कितना है? Thus angle in triangle, right angle triangle, है ना? A C D angle A equals to 90 degree. Okay? And क्या एक एंगल बन रहा है अपना? C D A equals to 30 degree. So CDA is equals to 30 degree. So we have to find the height of the tree. So base is given. This base is given to us, and we will find the first AC, and then we have to find the CD because CD equals to BC के बराबर है. Okay. So क्या लेना? अगर अपन को height AC निकालनी है, we have given the base. तो perpendicular upon base क्या होता है? This is इसका मतलब perpendicular और this is perpendicular and this is base. तो perpendicular upon base कौन सा होता है? या base upon perpendicular कौन सा होता है? कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं? तो tan थीटा होता है और या cot थीटा ले सकते हो. तो we will take in triangle ACD tan 30 which is equals to perpendicular upon base. Perpendicular कौन सा अपना? AC upon AD. Okay. Now tan 30 कितना होता है? 1 upon √3. And what is AC? AC we have to find. And AD कितना है? 8 meter. Then AC कितना हो जाएगा? 8 upon √3. Okay? तो AC तो फाइंड हो गया अपन को, लेकिन we have to find also CD also. तो we have given this hypotenuse and the base. ये perpendicular we have also find. तो क्या ले सकते हो? perpendicular upon hypotenuse sin थीटा भी ले सकते हो trigonometry ratio और base upon hypotenuse cos थीटा भी ले सकते हो. Any we can take. Okay. तो सबसे पहले sin थीटा ले लेते हैं. चलो sin in triangle ACD sin 30 is equals to perpendicular upon hypotenuse होता है. तो perpendicular कितना अपना? AC upon
CD. ये कितना होता है? हाफ. Sin 30 is equals to half. AC, we have already find AC. 8 upon root 3. 8 upon root 3 upon CD. ओके, तो CD क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इक्वल्स टू 8 अपॉन रूट 3 ये से मल्टीप्लाई इंटू 2 तो 16 अपॉन रूट 3. ओके, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? दैट इज AC. सो sorry, what is the height of the tree? That is AB. So AB is the height which is equals to AC plus BC. तो अपन लिख सकते हैं AC प्लस एज अपन को मालूम है BC इक्वल्स टू CD के बराबर है तो प्लस CD लिख सकते हैं. AC कितना है? 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3 विच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एलसीएम तो रूट 3 आ जाएगा. दैट इज 24 अपॉन 24. तो अपन क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे तो अपना आ जाएगा 24 रूट 3 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा 8 रूट 3 मीटर. ओके, तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री. AB height of the tree is 8 root 3 meter is the height of the tree. Okay, तो we have easily done the question. अगर अपने फिगर बनाया तो इजिली पता चल गया कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वी हैव टू टेक. ओके, so we have finished question number first. Now we will move to question number second. We have finished question number first. Now we will do the question number second. A circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. Let us consider a pole. AB is your pole and rope is stretched. It is 20-meter long. Okay. If the angle made by the rope, this rope made by in the ground level is 30 degree. This is 30 degree. Find the height of the pole. This is BC is a rope. Solution बहुत easy है आपका. AB is equals to pole. Height of the pole. AB equals to height of the pole. BC is equals to rope which is equals to 20 meter. So in triangle ABC, angle A equals to 90 degree and angle BCA equals to 30 degree. So we have to find the height of the pole. The hypotenuse is given to us and we have to find the height. This height we have to find. So this is perpendicular for us. तो perpendicular upon hypotenuse कौन सा रेशियो यूज करेंगे? Sin theta. Yes. So in triangle ABC, sin 30 is equals to perpendicular of hypotenuse. Perpendicular क्या है? AB upon BC. Sin 30 कितना? हाफ which is equals to AB कितना होता है? We have to find and BC is equals to 20 meter. Then AB equals to 20 upon 2 which is equals to 10 meter. So height of the pole कितना हुआ? AB which is equals to 10 meter. By the figure we have easily find कि अपन को कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना है. बस क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत इजी है फिगर बनाना. And we have easily done it. So we have finished first and second question. Now we will move to a third. We have finished question number 2, first and second. Now we will do the question number third. A contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below 5 years, she prefers to have a slide whose top is height is 1.5 meter and inclined at the angle of 30 degree. This is A, B. तो स्लाइड पे आपका ऐसा होगा which is equals to given. She prefers to have a slide whose top is height is 1.5 meter inclined at the angle of 30 degree. Angle of 30 degree. 1.5 meter at the top. Okay. To the ground. Whereas the elder children, she want to have the step slides at the height of 3 meter. इसके ऊपर ही C. तब your AC
this is equals to 3 meter. Okay, which is 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. Inclined at the angle of 60 degree to the ground. Find the what should be the length of the slide in each case. Okay, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या दे रखा है कि a contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the 5 years, prefers to have a slide whose top is height. उसका top height is equals to 1.5 meter, which is 1.5 meter and inclined at the angle of 30 degree to the ground. Now for above 5 years, you have to step slides at the height of 3 meter. So AC should be your 3 meter. मतलब इस B के ऊपर ही इसने 1.5 मतलब टू द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड से एट पॉइंट C तक 3 मीटर तक है. ओके, एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड. So you have to find the BD and CD. BD and CD. 2 slides small. स्मॉलर के लिए BD है एंड बड़े बच्चों के लिए क्या है? CD है. ओके, that was the solution. So we have given 2 triangles, ABD and ACD. Okay. So we will write in triangle ABD and triangle ACD. Angle A equals to 90 degree. Okay. And BD and CD are the length of slides. Okay. Now we will take first in triangle ABD. Angle A equals to 90 degree and angle ADB equals to 30 degree. Okay. So what is given to us? We have given the height. This is perpendicular. 30 डिग्री के सामने कौन सा ऑपोजिट साइड होता है? दैट इज perpendicular. और स्लाइड की हाइट दैट इज हाइपोटेन्यूज. तो व्हाट वी हैव टू डू? perpendicular में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन रेशियो ले लेते हैं. तो साइन 30 इज इक्वल टू perpendicular में हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन BD. ओके, तो साइन 30 कितना होता है? हाफ इज इक्वल टू AB कितना है? 1.5 अपॉन BD. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5 विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर. ओके, तो BD की हाइट आएगी 3 मीटर. नाउ सेकंड ट्रायंगल ले लेंगे. इन ट्रायंगल ACD तो एंगल CDA इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो सेम वही हाइपोटेन्यूज और अपन को साइड कौन सी दे रखी? दिस हाइट AC. तो साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन CD. तो साइन 60 कितना होता है भाई? √3 अपॉन 2. AC कितना है अपना? 3 मीटर अपॉन CD. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. CD इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3. कैंसिल कर देंगे तो √3 आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 2√3 मीटर. तो CD की हाइट कितनी होगी? 2√3 मीटर. ओके, तो साइन 60 की वैल्यू. तो इसी तरह अपन दोनों की स्लाइड की फर्स्ट हाइट कितनी होगी? फर्स्ट BD की हाइट स्लाइड की जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो अपनी आई 3 मीटर. और साइन 60 जो AC हाइट पे है तो एंगल 60 डिग्री बना रहा है वो कौन सा है अपना? 2√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द स्लाइड. तो वी हैव फाइंड द बोथ द हाइट ऑफ द स्लाइड. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर of elevation at the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. What is given? That we draw the tower.
the angle of elevation from the top of the tower. This is angle of elevation from the top of the tower, from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. This is 30 meter away from the foot of the tower. This AB is a tower. The angle of elevation, the man is looking from the point B and which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, making angle of 30 degree. Find the height of the tower. You have to find the height AB. Okay. So what is given? We have to find this height. So this is perpendicular and this is base. So let solution AB is equals to height of the tower. Okay. So in triangle ABC, angle A equals to 90 degree and angle BCA equals to 30 degree and AC equals to 30 meter. So we have to take, so we have given the base and perpendicular, so we can tan 30 degree equals to base AB upon AC. कितना होता है 1 upon √3. AB कितना है? We have to find. AC is equals to 30 degree, 30 meter. Okay. Then AB equals to 30 upon √3. तो नीचे स्क्वायर रूट आ गया, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करो, √3 upon √3. 30 √3 upon 3 which is equals to 10 √3. तो AB की हाइट कितनी आई अपने 10 √3 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, 10 √3 मीटर. सो बहुत इजीली फिगर ड्रॉ करने से बहुत इजीली अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. अगर अपन को क्वेश्चन समझ में आ जाए, 2 बार पढ़े तो अपन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और फिगर ड्रॉ कर लेंगे. तो इससे अपने बहुत इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. तो इस तरह से अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे. तो 3rd और 4th अपना कंप्लीट हो चुका है. अब वी विल डू द 5th एंड 6th. We have finished till question number 4. Now we will move to question number 5. Okay. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. This is a boy, 1.5 meter tall. A, B, 1.5 meter tall. Standing at some distance from 30 meter tall building. ये आपकी बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है. That is CD. This is 30 meter tall building. Okay. The angle of elevation. ऊपर देख रहा है. The angle of elevation. भाई नीचे से ऊपर देख. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से अपन ऊपर देखना है. That is elevate, ऊपर देखना है. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases. Angle of elevation increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. 30 degree से कितना हो गया ये? 60 degree as he walks towards the building. बिल्डिंग के साथ मूव कर रहा है ये towards it. Find the distance he walks towards the building. तो कितना डिस्टेंस? दिस इज, जब ये एट पॉइंट बी पे था तो ही इज मेकिंग 30 डिग्री. When he moves to point E, he make an angle of 60 degree. तो we have to find B. कितना उसने walk it towards the building. तो इसको BE, इसको F कंसीडर कर लेते हैं, इसको G कंसीडर कर लेते हैं. ओके. So we have to find BE. क्वेश्चन क्या बोल रहा है वापस से? एक 5 मीटर टॉल बॉय है जिसकी अपन हाइट AB मान ली, और एक टावर है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट CD है, एंड दैट इज 30 मीटर टॉल. और बॉय और बिल्डिंग में कितना डिस्टेंस है? जब बॉय टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है तो ही मेक 30 डिग्री, फिर ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग एंड देन ही मेक्स एंगल 60 डिग्री. तो वी हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री. ओके. तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. ओके. नाउ वी डू द सॉल्यूशन.
तो क्या क्या कंसिडर अपन को कंसिडर कर रखा है? ओके, गिवन अ बॉय AB हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर. ओके, एंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है? CD है, दैट इज 30 मीटर. बिल्डिंग की बॉय की हाइट कितनी? 1.5 मीटर और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर. तो अपन कह रहे हैं BF. नाउ ड्रॉ BF पैरेलल टू AD, which is distance between the boy and the building. But we have to find the कि how much he walk. B अपन को निकालना. What we have to find? B निकालना distance. Okay? So कौन कौन से दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं? तो ट्राइंगल एक में दो ट्राइडेंटल ट्राइंगल बन रहे हैं. अपन देख रहे हैं एक तो बन रहा है CFE और एक बन रहा है CFB. तो दिस इज 90 डिग्री पे बन रहा है. दिस F पे 90 डिग्री. सो इन ट्राइंगल तो अपन को मतलब CF चाहिए. तो व्हाट इज CF? CF क्या हो जाएगा? CD माइनस FD. तो CD कितना है? 30 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 28.5. तो CF कितना हो गया अपना? 28.5 मीटर. ओके, नाउ सो ले लेते हैं इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल CFE. ओके, राइट एंगल तो एंगल इस पे F पे 90 डिग्री है और एंगल CEF इज इक्वल टू 60 डिग्री है. सो वी हैव गिवन हाइट इज गिवन टू अस. We will find EF. EF निकालना है तो लेंगे tan 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू tan 60 कितना हो जाएगा? CF अपॉन EF, दैट इज √3. CF कितना अपना? 28.5 एंड EF कितना? वी हैव टू फाइंड. ओके, EF कितना हो जाएगा अपना? 28.5 अपॉन √3 मीटर. ओके, नाउ दूसरा ट्राइंगल लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल DCF. जिसमें एंगल CBF इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, सो इसमें भी अपन को हाइट दे रखा और अपन बेस ले रहे हैं तो भाई 10 लेंगे, 10 30 विच इज इक्वल टू हाइट तो कितनी CF होगी? CF अपॉन BF कितना होता है? 1 अपॉन √3. CF और BF क्या होता है? व्हाट इज BF? BE प्लस EF. BE प्लस EF. तो लिखो BE प्लस EF. तो दैट इज 1 अपॉन √3. CF कितना है? 28.5 एंड BE कितना है? इस पर लिखेंगे एक बार. सो 1 अपॉन √3 28.5 अपॉन BE कितना है? वी हैव टू फाइंड. और EF कितना है? वी हैव फाइंड. इसको बाद में पुट कर देंगे EF. ओके, तो BE प्लस EF इक्वल्स टू 28.5 √3. तो BE कितना हो जाएगा? 28.5 माइनस EF √3. 28.5 √3 माइनस EF. BE इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस EF कितना है? 28.5 अपॉन √3. तो वी गेट 28.5 कॉमन ले लेते हैं. ओके, एंड √3 माइनस 1 अपॉन √3 एलसीएम ले लें. तो 28.5 √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा? 3 माइनस 1.
तो कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3। तो नीचे रूट है तो वी हैव टू रैशनलाइज, तो कर देते हैं रैशनलाइज। 28.5 इंटू 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, तो कितना है 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3, कैंसिल हो जाएगा। 28 से कितनी बढ़ जाएगा 9.5, तो 95 टू कितना हो गया, दैट इज 19, 0 तो पॉइंट हट जाएगा 10, दैट इज 19 रूट 3 मीटर। तो अपने कितनी आ गई, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 19 रूट 3 मीटर ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, तो बहुत इजी, इसमें यही ध्यान रखना है कि एक बॉय है जिसकी हाइट, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि बॉय जो स्टैंडिंग है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और बिल्डिंग के दूरी पे खड़ा हुआ है, और जिस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो बिल्डिंग और बॉय ग्राउंड पे खड़े हैं, तो अपन क्या कर देंगे, जब अपन इसकी टावर की हाइट है तो इसमें से माइनस कर देंगे, बॉय की जो हाइट है उसमें से टावर की हाइट से माइनस कर देंगे, तो अपना कितना था CF कितना आ जाएगा 28.5। देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ वी विल मूव टू एंड क्वेश्चन नंबर 6th. A kite is flying at the height of 60 meter. ये काइट है ना, हाइट ऑफ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground से, okay, AB 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. This ground से attached है on the ground. The inclination of angle 60 degree. Okay. Find the length of the string. You have to find this length BC. Find what we have to find BC. So, assuming there is no slack on the string, so we have to find the BC. ठीक है, सोल्यूशन करें। गिवन, तो distance of the height, this AB which is given to us 60 meter, and BC is equals to length of the string, which we have to find. Okay, so which is given, hypotenuse and perpendicular is given to us, so we will which taking over the ratio we will take sine. Okay, so we will take sine 60 which is equals to perpendicular on hypotenuse. So what is perpendicular, AB upon AC, तो ये कितना होता है रूट 3 अपॉन 2, एंड AB कितना हुआ 60, एंड AC we have to find. Then AC equals to multiply 60 upon into 2 upon root 3. Okay, नीचे रूट 3 तो we have to multiply by root 3. रैशनलाइज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 60 into 2 into root 3 upon 3, which is कट जाएगा 20, which is equals to 40 root 3 meter. So this 40 root 3 meter is the length of the string. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो we have finished question number 6th. Till yet we have finished question number 6th. Now we will do the question number 7th. A statue of 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal. एक पेडिस्टल है जिसमें अपन कुछ भी स्टैंड करते हैं, दैट इज पेडिस्टल. स्टैचू 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal. This is pedestal. This AB is a pedestal. इस पे स्टैचू स्टैंड है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर. ओके, दिस इज C point. Okay, from the point on the ground, the angle of elevation from the point on the ground, इसका मतलब नीचे से देखना ऊपर, elevation मतलब नीचे से ऊपर देखना. अच्छा, the angle of elevation of the top of the statue, top of the statue को देख रहा है is 60 degree. तो ग्राउंड से ये देख रहा है top of the statue, which is make angle of 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. This is pedestal. Pedestal ये वाला, इसका top point कौन सा A है. Same point से it make 45 degree. This is 45 degree.
फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, पेडिस्टल की हाइट ए बी निकालनी है। वापस से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक पेडिस्टल है जिसकी हाइट ए बी है, उसके ऊपर एक स्टैचू रखेगा एसी जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और ये ग्राउंड से बना रहा है, एलिवेशन के नीचे से बनाएगा, ग्राउंड से बना रहा है एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, दिस इज पॉइंट डी। एंड ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द statue it make an angle of 60 degree, and from the top of the pedestal it make an angle of 45 degree on the ground. So we have to find the height of the pedestal. Okay, we have to find the AB. So solution लिखो, जो वो given है भी लिख लेते हैं। AB स्टैंडर्ड पढ़े, AB is equals to height of, इसकी हाइट है हाइट ऑफ पेडिस्टल। ओके, और स्टैचू की हाइट एट AC विच इज 1.6 मीटर, विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्टैचू। ओके, विद डिस्टेंस इज नॉट ऑल्सो गिवन टू अस, तो क्या लिखेंगे, लेट BD वी हैव टू फाइंड। सो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ट्राइंगल बी पे, इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD, एट बी पे 90 डिग्री है, और कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल CDB इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एंगल ADB इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, फर्स्ट ट्राइंगल ये ले लेते हैं ABD इन ट्राइंगल ABD। ओके, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फिर सेम ले लेंगे 10 45 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। तो 10 45 का जब 1 होता है AB अपॉन BD, तो BD इक्वल्स टू AB के बराबर है। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। Now we will take another triangle in triangle BCD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वापस 10 60 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, पूरा लेना पड़ेगा अपन को, दैट इज BC अपॉन BD। अच्छा, BC क्या अपना AB प्लस AC, तो AB और BD तो सेम है, 1060 इक्वल्स टू BC अपॉन BD है। ओके, दैट इज √3 विच इज इक्वल्स टू BC कितना है, AB प्लस AC कितना है 1.6 मीटर, और BD किसके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BD किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें, AB √3 इक्वल्स टू AB प्लस 1.6, AB इधर कॉमन ले लेंगे, इसको इधर कर देंगे, AB √3 माइनस AB इज इक्वल्स टू 1.6, AB कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, देन AB is equals to 1.6 upon √3 minus 1। तो अपन क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज का अपोजिट साइन लेंगे हमेशा, तो क्या लेंगे √3 प्लस 1, और इधर भी क्या ले लेंगे √3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और क्या A माइनस बी और A प्लस बी, सेम फॉर्मूला हमेशा जब भी रैशनलाइज करोगे कि आपकी एक ही आइडेंटिटी लगेगी, A प्लस बी A माइनस बी, वो जो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसका कट जाएगा, दैट इज 0.8। अच्छा, 0.8 इज इक्वल्स टू 1.73 प्लस 1, तो 0.8 इंटू 2.73 कितना हो जाएगा 6 8 56 का 5 16 प्लस 5 21, तो
1 2 3 1 2 3 that is तो 2.166 मीटर इज द हाइट ऑफ द दिस 2.16 मीटर। तो अपन ने किसकी हाइट निकाली? तो पेडिस्टल की हाइट कितनी हुई? हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितना हो गया? 2.166 मीटर इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. From the point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower is fixed at the top of 20 meter high building. मतलब बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन लगा हुआ होता है, ठीक है ना? हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर एबी। इसमें आपने क्या रखा है? टावर लगा रखा है, दैट इज दिस इज टावर। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से पॉइंट से, ठीक है, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, फ्रॉम द बॉटम, ट्रांसमिशन का बॉटम और इसका टॉप, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसके तो 45 डिग्री बना रहा है और टॉप से बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यू हैव टू फाइंड दिस हाइट ऑफ द टावर बीसी। ओके, इसको डिकंसीडर कर लेते हैं। सेम इसी तरह ये आपको पहला, इसमें तो आपको एबी की हाइट निकालनी थी पेडिस्टल की और आपको स्टेचू की हाइट दे रखी थी। इसमें उल्टा है, बिल्डिंग की हाइट देखी है एंड आपको टावर की हाइट निकालनी है। सेम है ना? तो सोल्यूशन करें। सो व्हाट इज गिवन? AB equals to 20 meter height of the building. Okay, and BC किसकी हाइट है? टावर की हाइट, which we have to find. और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? नीचे से देख रहा ऊपर, एक बार तो इसके बॉटम को देख रहा है, इसको टॉप को देख रहा है ना? एलिवेट मीन्स you have to see from the ground to the top, from the bottom to the top. इस एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री का और इसका। तो लेट्स इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, एंगल ए पे 90 डिग्री है। ओके, सो सबसे पहले रहते हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। तो क्या ले लेंगे? 10 45 डिग्री ले लें, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन AD। तो AB आपको देगा दिस इज 1 और AB आपको देगा 20 मीटर एंड AD, तो AD इक्वल्स टू 20 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है, एडी अपन ने कितना निकल गया? 20 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड, अपने टावर की हाइट निकालनी है। तो वी विल टेक अनदर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, जिसमें एंगल बन रहा है आपका एंगल CDA इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो वापस से वो ले लेंगे क्योंकि अपने पास क्या है? हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर बेस मिल गया अपन को हाइट निकालनी है। तो 10 60 इक्वल्स टू AC अपॉन AD। अच्छा, इधर AC क्या है? AB प्लस BC। ओके, 10 60 कितना होता है? √3। AC क्या है? AB। तो AB कितना है? 20, इधर इक्वल है AB प्लस BC अपॉन AD। तो √3 इक्वल्स टू AB कितना है? 20 प्लस BC एंड AD कितना है अपना? 20 मल्टीप्लाई √20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस BC। तो BC इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20। तो 20 कॉमन ले लो तो आ जाएगा √3 माइनस 12 मीटर। तो हाइट कितनी है ये अपनी? टावर की हाइट कितनी है? 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इज द हाइट ऑफ द टावर। So we have finished question number till 8, 1 to 8. Now we will move to question number 9. We will see in the next video. Thank you for watching my video.